Hey there, I'm Mohammad Shad and this is Shad Explains. So today's video is extended series of using MSI Afterburner for multiple uses like benchmarking your application or unlocking your core voltages for improving your performance. But if you unlock your core voltages and try to gain more frequencies to get higher performance, you end up in a situation where you are using higher powers and simultaneously you are producing more heat. And if you are running out of warranty with your graphic card, like one of my friend Divyanshu Singh, they are very scared of damaging their graphic card, then they are not trying to overclock their graphic cards. Well, if you are stuck in a situation like this, then don't be panicked or don't get scared, because I might have a solution for you if you considered it applying only then. And what is the solution? Undervolt your graphic card. So what is undervolting? Just like you have unlocked core voltages to push extra voltages to gain more frequencies for more performance, in undervolting you check that at a particular frequency what is the minimum supported voltage at that which frequency can be stably run. Your graphic card can stably run any application or given game in certain scenarios or conditions. So in undervolting we reduce voltages of power drawn by your chip graphic card's processor, and at the same time we are maintaining its original frequency. So there are two advantages, actually three advantages. First, you are reducing your power consumption of your graphic card. Second, you are reducing heat output of your graphic card. Third, you can, in theory and literally I am going to show you, you can get a stable boost at same frequencies which your graphic card is currently using for frequencies which are much lower and producing much higher heats and consuming more power. You can reduce your power consumption. How these three things help you? If you don't want to overclock, then simply you can maintain these frequencies and reduce your power consumption and your heat output. You can run your graphic card much cooler in simpler terms. And if you do this and you have little bit more courage than the courage the cowardly dog, what you are going to do is try to add that same voltages which your graphic card is currently using without undervolting it. You can get to those same voltages and see what is the maximum frequency it can support. In these scenarios you are maintaining the previous temperatures which your graphic card is using, and the second benefit you get is your frequencies are improved, which means at same power level and same thermal heat output you are getting a higher frequencies which can boost you around 5 to 7% in your game. And how we will do it? Earlier in this video we are using MSI Afterburner for this. For that you have to go to MSI Afterburner. For that you require two more things. First, open a game or benchmark which utilize your graphic card 100%. Let it run for around 15 to 20 minutes. Let it settle. See what is the stable frequency which is not fluctuating and what is the stable temperature at which these frequencies are not fluctuating. Then you are going to open your MSI Afterburner. After that, you are going to click on the core clock. Right next you can see a cellular tower. Click on these icons. You see a graph which is frequencies versus millivolt. Now there is a dotted line. तो हमें क्या करना है, अपने MSI आफ्टरबर्नर को खोलिए, अपने बेंचमार्क एप्लीकेशन को चलते रहने दीजिएगा, और अब आपको जाना है इस कोर वो क्लॉक को आप देख रहे हैं, इसके बगल में है सेलुलर टावर्स, इन पे क्लिक कर दीजिए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अपने बेंचमार्क को चलते रहने दीजिएगा और उस पर एक नज़र रखिएगा कि उसमें आर्टिफैक्ट्स ना आए, वो फ्रीक्वेंसीज में फ्लक्चुएशन ना करे और वो क्रैश ना करे। अगर ये तीन चीज़ें वो नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे ये करना है, जिस पॉइंट पे अभी जैसे सपोज आपका जीपीयू दिखा रहा होगा कि मान लीजिए वो ए, मैं करके ही दिखा देता हूँ,
लाइक ये है स्टॉक 1961 मेगाहर्ट्ज पे चल रही है, 5003 मेमोरी फ्रीक्वेंसी है मेरी, सॉरी फॉर दैट, 1961 मेगाहर्ट्ज पे चल रही है, 5000 फ्रीक्वेंसी है मेरी, और ये समय 98% यूटिलाइजेशन में है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ आपको समझना है। यहाँ पे हम अंडर वोल्टिंग करते हैं इस तरीके से। आप कोर क्लॉक पे क्लिक करेंगे, सेलुलर आइकन है इसके बगल में, इस पे क्लिक करिएगा, आपके पास ये आ जाएंगे पॉपअप, सॉरी चले गए, ये आ गया आपका पॉपअप। इस पे आप देख सकते हैं अभी इसने फ्रीक्वेंसी मेरी बताई है 1961, ठीक। तो देखिए ये कितने पे चल रहा है, ये डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं, ये है वो पॉइंट, यहाँ पे है 1961 1043 मेगाहर्ट्ज पे, सॉरी मिलीवोल्ट्स पे, 1043 मिलीवोल्ट्स पे चल रहा है ये समय, ठीक। अब हम इसको करेंगे अंडरवोल्ट। अंडरवोल्ट कैसे किया जाएगा, इसके बाद आप देख पा रहे हैं ना सारी लाइनें एकदम स्टेबल हैं, तो हम मतलब हर चीज़ आपको इसके बाद एक ही लेवल पे रखेंगे, जैसे 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल द लास्ट पॉइंट, है ना। अब जहाँ पे वो पहले 1961 था, जहाँ से ये चल रहा है, जो कि पॉइंट है आपका ये वाला 1031 मिलीवोल्ट पे, अब हम ठीक उससे पहले वाले पॉइंट पे आएंगे और उसको पुश करेंगे 1961 पे, उससे पहले वाले पे आएंगे, और यहाँ पे भी 1961 और यहाँ पे भी 1961। ये आप, क्योंकि मैं ये पहले टेस्ट कर चुका हूँ तो मैं आपको जल्दी करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, पर आपको ये हर एक पॉइंट पे करके इसको सेव करके चेक करना होगा। कैसे करना होगा वो मैं बता रहा हूँ। 1961 यहाँ तक ये मेरा स्टेबल था, देखिए इसको लाए उस पॉइंट से पहले, अब देखिए उसी वोल्टेज पे, उसी मतलब उससे कम वोल्टेज पे हमने वो फ्रीक्वेंसी अचीव कर ली है। ये मेरे में स्टेबल थी, तो मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ एक बार। आप ये देख सकते हैं जब मैंने अप्लाई किया, ये देखिए सेकंड वाली प्रोफाइल अगर हम देते हैं इसको, ये वाली, है ना, ये देखिए हमने 1961, ये 1949 है, 1949 पे स्टेबल था मेरा सब कुछ, 1949 हमने अप्लाई कर दी, सब कुछ 1949 पे है, और फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर ये देखिए, है ना, मिलीवोल्ट्स कम हुए। अब देखिए आपको क्या करना है, इससे आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, इसलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ। पहले से ही मैंने सेव करके रखी थी प्रोफाइल। आपको उस पॉइंट को देखना है, जैसे ये पॉइंट है जहाँ पे वो बिना कुछ चेंज किए ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट चल रहा था, जैसे ये पॉइंट है सपोज, जहाँ पे वो आपको इतनी फ्रीक्वेंसी दे रहा था, तो आपको उसके पीछे सारे पॉइंट को उसी लेवल पे ले आना है, सेम फ्रीक्वेंसी पे। आप चेक कर सकते हैं, सारी फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे मिलाइएगा, ये देखिए 20 25 पे है सब, 20 25 टिल द लास्ट वन, और मिलीवोल्ट्स नीचे बदल रहे हैं। तो ये थी स्टेबल वाली। अगर इसको आप नॉर्मली ओवरक्लॉक करेंगे तो ये चीज़ आपकी अराउंड जाएगी इस फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे आपको मिलेगी 2000। और अब हम देखिए पूरा इसमें 75 to 100 मिलीवोल्ट्स हमने इसमें कम कर लिए हैं, और अब हम उस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे, आप इस पॉइंट पे आपने इतनी सेट की, उससे एक पॉइंट पहले आइए, इस पर भी वही फ्रीक्वेंसी सेट करिए, सिंपल यहाँ पे आके अप्लाई बटन क्लिक कर दीजिए, देखिए अप्लाई हो गई। तो अब आप चला रहे हैं 125 फ्रीक्वेंसी पे एट 1000 मिलीवोल्ट्स। जब आपने ये कर लिया, आप उसको सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक एप्लीकेशन सेव करेंगे, इसको अप्लाई करके अप्लाई कर दीजिए, आपका चलने लगा। ऐसे होती है अंडरवोल्टिंग। अंडरवोल्ट करने से दो फायदे हैं।
पहली चीज़ जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, टेम्परेचर्स कम रहते हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, पावर कंजम्पशन गिर जाता है। इस समय हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं 993 मिली वोल्ट। यही चीज़ अगर आप नॉर्मल ओवरक्लॉकिंग में करेंगे तो आप कंज्यूम कर रहे होंगे 1075 प्लस मिली वोल्ट। ये डिफरेंस है अंडर वोल्टिंग का। करना बहुत आसान है, बस आपको एक एक पॉइंट पहले 10-15 मिनट चलने दीजिए सिस्टम को, किसी बेंचमार्क को या गेम को, जो फ्रीक्वेंसी उसमें कॉन्टिन्यूसली बनी रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरी 2037 बनी हुई परफेक्ट, तो हम 2037 देखेंगे कहाँ पे है पहला पॉइंट। मान लीजिए वो 2037 पहला पॉइंट ये है, तो हम यहाँ से फिर सारे पॉइंट्स उसके बराबर कर देंगे। उसके बाद फिर उसके पहले एक एक पॉइंट को उसके बराबर करेंगे, और हर एक पॉइंट को उसके बराबर करने के बाद यहाँ पे टिक दबाएंगे, 15 मिनट चलने देंगे, चेक करेंगे उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हम दूसरे पॉइंट को पुश करेंगे वहाँ तक, उसी पॉइंट पे लेके आएंगे। जब वो भी स्टेबल होगा फिर हम ऐसे तीसरे को करेंगे। तीसरा वाला स्टेबल नहीं था, इस वजह से उसको वापस नॉर्मल उसकी जगह रहने दीजिए। जो दूसरा था उसको वहाँ पे लेके जाइए, टिक बटन दबाइए, वो लग जाएगा। फिर फाइल दबाइए, फिर सेव दबाइए, फिर सेव दबाइए और सेव दबा के अप्लाई कर दीजिए। आप मस्त इसको चला रहे हैं। ये होती है अंडर। मजे करिए। अगर ग्राफिक कार्ड आउट ऑफ वारंटी है तो टेम्परेचर कम करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आपके पास ब्लोअर स्टाइल कार्ड है, याद करिए ब्लोअर स्टाइल एनवीडियाज फाउंडर एडिशन कार्ड है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का इससे अच्छा तरीका, इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। वरना फिर आप फैन खरीदेंगे, कोई अलग से कूलर खरीदेंगे, एयर फ्लो के लिए केस फैन बढ़ाएंगे, सब में खर्चा है। इसमें बस आपको वोल्टेज एडजस्ट करना है, वोल्टेज एडजस्ट करिए और आपका काम हो गया।